students, welcome you to all in SGI online class, and this is your biology class. Students, today I am going to start the chapter 7 health and hygiene and the unit 2 communicable disease. Unit 1 I also describe you unit 1 through the Zoom classes. So today I am going to start the unit 2, that is communicable disease. First of all, student, what is communicable disease? The disease which is spread from one person to another is called communicable disease, and the communicable disease is transmitted from one person to another by the action of microorganisms. This disease is caused by the infection of microorganisms. Now, what is microorganisms? Microorganisms are the organisms like virus, bacteria, fungi, protozoa, worms. These are known as microorganisms. Okay, students. So, communicable disease is transmitted or is caused by the infection of microorganisms. Microorganisms से होने वाली disease होती है communicable disease, and this disease is transmitted from one person to another. As the name suggests that communicable means एक person से दूसरे person में ये disease spread हो रही है. So we can say the disease which is spread or transmit from one person to another are called communicable disease. Okay, and this disease is caused by the infection of microorganisms. For example, cholera, typhoid, diphtheria, etc. These are communicable disease. Now, how these communicable disease are transmitted? Because these are caused by the infection of microorganisms. Now, how the microorganisms enter or entry into the human body? कैसे microorganism entry करते हैं हमारी body में? By through the air we inhale. You know that at the time of respiration we inhale the air. This is the inhalation, and when we inhale the air, the microorganisms also we inhale. Means अगर if the air is polluted, then when we inhale the air, with the air there is also certain microorganisms, bacteria also we inhale. हम उस air के साथ बहुत सारे bacteria, virus को भी inhale करते हैं. ठीक है students? But as you know that in our nose there is a tiny hairs which trap the dust and these microorganisms. But sometimes when we inhale the air through the mouth, these microorganisms enter into our body. Okay, students. Next is through the water we drink and the food we eat. If we drink the contaminated water and we eat the contaminated food, the microorganisms also enter into our body by this contaminated food or water. Now, what is contaminated food and water? The water, the infected water and the infected food are known as contaminated food and contaminated water. If we eat the contaminated food and we drink the contaminated water, then the microorganisms enter into our body. So students, that's why they are strictly prohibited that the food with street food which is keep in the open place, never we eat. हमें कभी भी स्ट्रीट फूड जो कि ओपन प्लेस पे रखे हों उन्हें कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ये ओपन फूड में बहुत सारे फ्लाइज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो उस फूड में आ जाते हैं. जो हम वो फूड खाते हैं जब भी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. नेक्स्ट इज थ्रू द स्किन. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट स्किन इज ए बैरियर. Our body has a envelope, outer covering, that is called skin. Skin हमारी body की envelope होता है, एक outer covering होती है, which is act like a barrier for the entry of microorganisms. But sometimes when we injured and there is a wound, at that wound, cut or injury place, the microorganisms enter into our body. Okay, students.
कभी भी जब हमें इंजरी होती है, कोई कट लग जाता है, वुंड हो जाता है, उस जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर एंटर जाते हैं. सो वी कैन से दैट थ्रू द स्किन. Students, here are some common disease caused by the microorganism in human beings. As you know that virus, bacteria, fungi, protozoa, worms are microorganisms and these cause the disease in human body. So, in the page number 65, table 7.2, here is a table which have some common disease which is caused by the microorganism in human body. Let's discuss these table. First is microorganism. First microorganism है virus. सो वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है? फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द वायरस दैट इज इन्फ्लुएंजा. कॉमन कोल्ड किससे होने वाली डिजीज है? वायरस नेम इज इन्फ्लुएंजा. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड? द सिम्टम्स इज वाटरी आईज, हमारी आईज से वाटर आना, एंड वाटरी म्यूकस सिक्रेटेड बाय आवर नोज. नोज से वाटरी म्यूकस सिक्रेट होना. रनिंग नोज हो जाती है, जिसे हम रनिंग नोज या वाटरी म्यूकस भी कह सकते हैं. ओके. ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, एंड ड्राई थ्रोट, थ्रोट में ड्राई सा फील होना, एंड हेडेक. हेडेक मीन्स पेन इन अवर हेड. सो हेडेक. These are the symptoms of the common cold. And what is the mode of infection? Actually, the common cold is caused by the air. It is an airborne disease. We can say that airborne disease. Air से होने वाली disease है. जब भी कभी आप जैसे आपके घर पे किसी को कोल्ड हुआ है, या फिर इन एनी केस इन योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को कॉमन कोल्ड हुआ है, देन व्हेन यू कम इन द कांटेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, द डिजीज इज ट्रांसमिट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी में वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द एयर. कैसे होती है? एयर से. जब आप इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है, तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो वायरस होता है, जब आप इनहेल करते हो एयर, तो उसके साथ आप उस वायरस को भी इनहेल कर देते हो. सो दिस इज अ एयरबॉर्न डिजीज. ओके स्टूडेंट्स. एंड व्हाट आर द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ दिस डिजीज? दैट इज इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट कवर माउथ एंड नोज व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग. जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हो, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपना माउथ एंड नोज को कवर करके रखना चाहिए. स्नीजिंग करते समय, कफिंग करते समय उसको अपने हैंड से या हैंडकरचीफ से अपने माउथ एंड नोज को कवर करना चाहिए. एंड कभी भी पेशेंट को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको हेल्दी पर्सन या किसी हेल्दी पर्सन के साथ बैठने से अवॉइड करना चाहिए. उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. नेक्स्ट डिजीज इज चिकन पॉक्स. सो चिकन पॉक्स इज ऑल्सो अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द वायरस, एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर द रैशेस इन द होल बॉडी. पूरी बॉडी में रेड कलर के रैशेस अपीयर हो जाते हैं. देन एंड देयर इज अ फीवर. फीवर होता है, हल्का मॉडरेट फीवर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है बॉडी में, हेडेक होता है, एंड द जनरल डिस्कम्फर्ट. आपको कोई भी डिजीज होती है तो जनरल डिस्कम्फर्ट तो होता ही है. एंड व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? फर्स्ट इज एयर. एयर इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड सेकेंड इज द कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और विद द आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन की किसी भी यूटेंसिल्स को यूज करते हैं, तो भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. ओके स्टूडेंट्स. एंड द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स आर द पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल पब्लिक प्लेसेस. उस पेशेंट को हमेशा आइसोलेट मीन्स हमेशा अलग रखना चाहिए. जो भी जनरल पीपल्स है, जनरल प्लेस है, उन प्लेस से पेशेंट को हमेशा अलग रखना चाहिए. और पेशेंट के क्लॉथ्स को डेली चेंज करना चाहिए, अलग वॉश करना चाहिए. कभी भी हेल्दी पर्सन के क्लॉथ्स के साथ उस पेशेंट के क्लॉथ्स को वॉश नहीं करना चाहिए. और एंटीसेप्टिक्स का यूज करना चाहिए. ओके. दीज आर द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स. क्योंकि ये पेशेंट के कांटेक्ट में आने से होती है, इसलिए पेशेंट को अलग रखना चाहिए और उनके क्लॉथ्स को, उनके यूटेंसिल्स को भी अलग ही वॉश करना चाहिए. थर्ड डिजीज इज मीजल्स. मीजल्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस, एंड the general symptoms of this disease is begin with a cold, fever and headache. जब ये डिजीज होती है तो स्टार्टिंग में हमें फीवर फील होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, हेडेक होता है. इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी में. और छोटे छोटे से रेड स्पॉट पूरी बॉडी में अपीयर हो जाते हैं. फेस में,
बॉडी में पूरी जगह पे छोटे छोटे से रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। एंड दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एयर एंड कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन क्लॉथिंग। ठीक है, ये डिजीज भी कैसे होती है? थ्रू द एयर से हो सकती है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के जो क्लॉथ्स हैं उनसे भी ये डिजीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स इज द वैक्सीन। आपको पता है कि वैक्सीन क्या होता है? डिजीज कॉज होने से पहले हम क्या करते हैं? वैक्सीन देते हैं। तो मीजल्स की भी वैक्सीन पहले से ही होती है। मीजल्स की वैक्सीन ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है, तो इसके लिए पहले से ही मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट डिजीज वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. That's enough for today. We will discuss the next disease in our next class.